कि जो है उसका कुछ नेम होगा वो ही फाइल शेयर कर दो, ठीक है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप में मैसेज मत करो, अभी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो अनम्यूट करके यहाँ पे ही बोलो। मैम, हेलो मैम। यस बोलो। મેડમ મારે એમાં અમુક પીપીટી છે ને હજી કાઢવાની છે, સરખું બનાવવાનું છે, તો આજે નહીં દઉં તો ચાલશે? તારો નંબર આજે આવે તો કેજે મને પ્રોબ્લેમ, અધરવાઇઝ જો તારો નંબર ના આવે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રેડી રાખ. હા, થેન્ક યુ મેમ. ઓકે 24 કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ 24. Twenty-four absent. Then next is 28 heat. મેડમ મેં કીધું એ જ અમારે. 10 roll number 10 Manav. Manav present or not? Yes, ma'am. Mail કર્યું છે Ma'am, but present? left somewhat. Ma'am, થોડુંક બાકી છે. સ્ટ્રીક એક્શન ના લેવા પડે હવે મારે. 61 પાર્થ. 61 પાર્થ. મેમ પાર્થ પ્રેક્ટિકલ 11 અને 12 બંને કર્યું હશે તો ચાલશે ને? શું 12 અને 11? બંને કર્યું હશે તો ચાલશે ને? શેની વાત કરો છો તમે? તમે તેદી કીધું તો ખબર હે કે ગમે ઈ એક જ કરવાનું. પ્રેક્ટિકલ 12 અને અસાઇનમેન્ટ 3 એનું મેં કીધું હતું કે અસાઇનમેન્ટ 3 ની જે પીપીટી હોય ને. હા એ જ કહું છું. હા હા ચાલશે. 66 હેરી. યસ મેમ. રેડી છે પ્રેઝન્ટેશન? યસ મેમ. ઓકે તો હું શેર કરું છું, પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાર્ટ કરી. વેઇટ. મેમ મારે શેર કરવું પડશે ને? વોઇસ નથી આવતો. હેલો 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 હેલો. પીડીએફ ફાઇલ ન મોકલો મને, કેમ કે ખબર કેમ પડશે કે તમે એનિમેટેડ સ્લાઇડ કરી છે કે નહીં એમ. તમારું જે ઓરિજિનલ પ્રેઝન્ટેશન છે એ જ મેલ કરો.
અને આ રેકોર્ડિંગ નો જે મેસેજ છે પૃથ્વી પાર્થવી બા મારી ટીમ શું આવે ને મને ખબર છે એટલે મને ઇન્ફોર્મ ન કરો. રેકોર્ડિંગ ઓલરેડી મારી એક મીટિંગમાં ચાલુ જ છે. ઓકે સ્ટાર્ટ હેરી. Hello. 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 66 start your presentation. તો હવે તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન હું કેવી રીતે કરી દઉં? તમને ખબર જ હતી પ્રેઝન્ટેશન છે અને જો કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય તો હું આવી રીતે મારી 3-4 લેક્ચર ન બગાડું. બોલો, બધામાં 0-0 મૂકી દો, 10 આઉટ ઓફ 0. કાં તો પ્રેઝન્ટેશન રેડી નથી, કાં તો કે મારું આ નથી ચાલતું, કાં તો કે નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે. બધા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન તો મેં કરી દીધું છે હવે તમને. ઓકે ભાર્ગવ. DC 275 roll number Bhargav. Yes, ma'am. Okay, start your presentation. મેમ શું છે મેમ લાસ્ટ લેક્ચરમાં હું નહોતો એટલે કઈ ખબર નથી મને. તમે આ આ બધું લાસ્ટ કીધું હતું લેક્ચર નું નથી, આ પ્રેઝન્ટેશન નું છે. તમે પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું છે, એમાં શું નાખ્યું છે એ તમને સમજાવતા તો આવડે ને? કોનામાંથી જોઈને પ્રેઝન્ટેશન English લીધું છે? કોણે બનાવી દીધું છે? કોઈ નથી બન્યું, મેં જ બનાવ્યું. તો પ્રેઝન્ટેશનમાં તમે જે લખ્યું છે આ વસ્તુ સમજાવતા તો આવડશે ને તમારી લેંગ્વેજમાં? એટલે વોટ ઇઝ ઇંગ્લિશ ડિજિટલ માર્કેટિંગ ટોપિક ક્યાંથી લીધો હોય તમે? જે લેંગ્વેજમાં આવડે એવી રીતના પણ બોલો. ઓકે. આપ્યું છે કોઈ દિવસ પ્રેઝન્ટેશન કે નથી આપ્યું? નથી આપ્યું. ડેમો જોઈ છે તો? હા એટલે તમે કયો ને ડેમો. વેઇટ, વરુણ તારું પ્રેઝન્ટેશન રેડી છે? વરુણ CR. હા મેમ. હું તારું પ્રેઝન્ટેશન શેર કરું છું, જોઈ લે. બરોબર, એકવાર પ્રેઝન્ટ કરી દે. જે લોકોને જે કઈ પ્રોબ્લેમ છે એ જોઈ લ્યો અને પ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે આપવાનું છે એ એક ડેમો થઈ ગયો તમારા માટે. હિસ્ટ્રી ઓફ કમ્પ્યુટર, રાઈટ? હા મેમ. ઓકે સ્ટાર્ટ. વરુણ 81. મેમ થોડોક નેટવર્ક ઇશ્યુ છે, બીજું કઈ નથી. ઓકે સ્ટાર્ટ કર. વચ્ચે થોડો વોઇસ કટ થશે, એટલું જ થશે ને. સ્ટાર્ટ કરી દે. સ્લાઇડમાં બધાને દેખાશે જ ફોન. હિસ્ટ્રી ઓફ કોમ્પ્યુટર.
what is computer? Actually, next ઓકે computer computer is a machine which is made by અને સમજાવો ઇઝીલી સમજાવો કે મેમ ગુજરાતી હિન્દી ચાલશે તારી લેંગ્વેજમાં જેવી રીતે સમજાવવું હોય ને એવી રીતે સમજાવ. મારે ખાલી પ્રેઝન્ટેશન નું ફોર્મેટ કેવું છે તમને બનાવતા આવડે છે કે નહીં મારે ઈ જ જોવાનું છે અત્યારે. आप लोग कंटेंट कैसे वो परफॉर्म करते हो वो अभी मैं नहीं देखूंगी, सिर्फ आपका टॉपिक है वो एंड आपने कौन सा फॉर्मेट यूज किया है. मतलब देखो ये वाली जो स्लाइड है उसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं है, राइट? क्योंकि आपने जो बुलेट यहाँ पे ऐड किया है वरुण, तूने वो बुलेट्स ऐड किया है, देख उसकी सीक्वेंस डन. तो बुलेट का जो सीक्वेंस है वो नहीं है एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं है डन. इन पीपीटी का मैंने बैकग्राउंड इफेक्ट बोला था कि लाइट ही रखो डन. इसमें तो इट्स ओके है क्योंकि आपने बैकग्राउंड डार्क कलर का रखा है तो फॉन्ट है वो व्हाइट कलर का है तो विजिबल है. अदरवाइज आप ऐसा करोगे कि डार्क कलर का बैकग्राउंड रखोगे और डार्क फॉन्ट रखोगे तो दोनों विजिबल नहीं होगा अच्छे से डन. तो नेक्स्ट ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है वो समझा दो पहले. प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंट आप करते हो तो कैसे करते हो, तो पहले आप फर्स्ट स्लाइड है देखो, आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें क्या लिखा है कि प्रिपेयर्ड बाय दिस. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज वरुण, माय रोल नंबर इज 81 and my topic on presentation of history of computer, right? Then next slide. So my objective of presentation, first slide आपकी कौन सी होनी चाहिए, objective और of your presentation. मैंने बोला था जब भी presentation समझाया था तभी देन कि आपकी जो इंडेक्स है प्रेजेंटेशन की जो सीक्वेंस है वो क्या है. तो वो फर्स्ट स्लाइड आपकी होगी तो यहाँ पे क्या आएगा कि ऑब्जेक्टिव आएगा. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, राइट? ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आपको ऐड करना है वो. देन है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट? ऑब्जेक्टिव का सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. देन जितनी भी आपकी जनरेशन अपने प्रेजेंटेशन में ऐड की है वो ब्रैकेट में रख दो. तो फिफ्थ तक किया है, ओके. तो दो आपका जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव हो गया. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के बाद आपकी फर्स्ट स्लाइड आएगी कि तो व्हाट इज कंप्यूटर. तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच परफॉर्म्स अ डिफरेंट टास्क, ओके. तो ऐसे तरीके से आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, ठीक है? आप क्या करते हो कि एक प्रेजेंटेशन बना देते हो, फिर यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ तो ऐसे ही उसमें देख के बोल देते हो डन. तो अभी ट्राई करो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, पहली बार प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि कैसे आप प्रेजेंट करोगे डन. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले पीपीटी बनवाने के लिए बोला है और प्रेजेंटेशन आप अभी प्रेजेंट करो, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, वॉट एवर लैंग्वेज विच यू कैन कंफर्टेबल, ओके. पर बोलो अभी, क्योंकि अभी कुछ नहीं बोलोगे तो लास्ट ईयर में आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, फाइनल रिपोर्ट होगा, तो उसमें कैसे आप परफॉर्म कर पाओगे. ओके, स्टार्ट. 81 Varun. Good morning, my name is Varun, my roll number is 81 and my topic is history of computer. Next slide please ma'am. Yes. Computer is a machine that has been made to for some task that human can't do. That means कंप्यूटर ऐसी चीज है जो ह्यूमन का मतलब हमारा इंसानों का काम इजी कर देता है, जैसे कैलकुलेशन और हमारा सब कुछ रिकॉर्ड रखने का काम. दूसरी जगह से कोई कुछ चेक करना, ये एक कंट्री से कम्युनिकेट करना हो हमको, हमारी प्लेस से टू अदर दूसरे कंट्री पे, तो कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो हमारा काम इजी कर देता है. नेक्स्ट स्लाइड मैम. Okay, last point है, third point. It can perform any kind of works involving arithmetic and logical operation. Which type of arithmetic and logical operator? अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाया है तो इसमें आपने वर्ड डाला है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है. डन. तो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, तो
ऑपरेटर्स क्या है वो पता है? Arithmetic means some type of calculations and logical operations. Means ओके, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है वो आप डिटेल में कंप्यूटर में पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस वो पांचों ऑपरेटर्स यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर है तो गेट का नाम सुना है आप लोगों ने? 0 1 गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ओके तो वो टाइप का जो ऑपरेटर्स वो जो लॉजिकल है वो परफॉर्म करता है उसको लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। उसमें आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वो सब। ओके अभी आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने पीपीटी में वर्ड डाला है तो आपको एक या दो ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। देन है कि प्रोसेस इट per the instruction or input given and give the information as the output. Which type of input and which type of output? फॉर एग्जाम्पल आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो यूज किया है तो मैंने अभी ऐसा लिखा है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, तो इनपुट कौन सा है एंड आउटपुट कौन सा है उसमें? फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्ट्रक्शन ऐसी परफॉर्म की है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस है उसका यूज किया है, राइट? तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है उसमें 2 + 3 या तो a प्लस बी इक्वल टू सी वो इंस्ट्रक्शन लिखिए तो उसमें इनपुट क्या होगा एंड आउटपुट क्या होगा? अगर पता नहीं है तो बोल दो। इनपुट मीन्स जब हम उसमें डेटा डालते हैं और हाँ। कुछ हम सर्च करते हैं उसका हमें आउटपुट देगा कंप्यूटर हमारे डेटा का। तो मैंने यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दी, राइट, कि a प्लस बी इक्वल टू सी, वो आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें इनपुट भी है एंड आउटपुट है। तो इनपुट किसको बोलते हैं? कि हम लोग जिसके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो a प्लस बी हो गया हमारा इनपुट। देन आपको जो भी रिजल्ट मिलता है मतलब आंसर मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट। तो सी क्या हो गया? आउटपुट। इनपुट इज a एंड b एंड ऑपरेशन इज एडिशन, operator is addition, a and b is input and c is output, right? पता चल गया इनपुट क्या है एंड आउटपुट क्या है? यस मैम। ओके अब दूसरी इंस्ट्रक्शन में ऐसा देती हूँ कि 2 × 3, 2 × 3 इक्वल टू 6। तो इनपुट क्या है एंड आउटपुट क्या है उसमें? रिपीट करो तो मैम। 2 × 3 इक्वल टू 6। 2 and 3 इनपुट है और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और आउटपुट Yes. 6 है। Yes, good. The next. Next, this is a photo of different pics. This is a pic of different generation computers. Yes, next. There are 5 types of generation. Number 1, first generation is vacuum tube. Second one is transistor. Third generation is integrated circuits. Fourth generation is microprocessor and fifth generation artificial intelligence. अभी कौन सी जनरेशन चल रही है पता है? अभी आप जो कंप्यूटर कर रहे हो कौन सी जनरेशन है? 11. Fourth, seventh gen. फोर्थ। ओके वो फाइन, सर्च करके आना। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा तभी मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगी, सर्च Ma'am. कर लेना, ठीक है? यस। मैं प्रोसेसर या तो विंडोज की बात अभी नहीं कर रही हूँ, कंप्यूटर्स जनरेशन की बात कर रही हूँ। ओके प्रोसेसर, What is generation? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जनरेशन वो सब है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो सर्च करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फर्स्ट जनरेशन 10th जनरेशन है। ओके वरुण फर्स्ट जनरेशन। Next slide, ma'am.
Next slide, ma'am. This is a peak of a first generation computer. And which type of instruction include in first generation computer? कौन सी प्रोसेस होती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में? तो वॉइस આવતો નથી વરુણ. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो पूरे पहला फर्स्ट कंप्यूटर जब बना था इस वर्ल्ड का, तो पूरे बड़े रूम के साइज का था। और उन्होंने कुछ सोचा था तो पूरे रूम के साइज का भी कंप्यूटर बनाया था। वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम से बना हुआ था पूरा कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़े छोटे कर दिया और उसमें उन्होंने सारी मेमोरी से वो वैसा बना दिया उन्होंने कंप्यूटर। उसके बाद से सभी कंप्यूटर में थोड़ी थोड़ी मेमोरी सेव होने लगी। यस, देन अदर थिंग्स। एडवांटेजेस क्या हुआ? सेकंड जनरेशन आई तो सब कंप्यूटर वो छोटे कर दिए, डिजाइन में छोटे कर दिए, और पहले वाले जो कंप्यूटर थे उनसे छोटे कर दिए। तो क्या होगा? मेमोरी जो है वो यहाँ पे स्टोर हो रही है, तो उसका एडवांटेजेस क्या होगा? हमको जब कुछ देखना होगा तो हम इजीली कंप्यूटर स्टार्ट करके वो देख सकते हैं। हमारा डेटा कुछ फाइंड करना होगा तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। यस, द नेक्स्ट। और उसको आप ऐसा वर्ड बोल रहे हो कि उसकी जो साइज है वो कम कर दी, तो उसका मतलब क्या है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वन टेक्निकल वर्ड आर देयर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। डन, क्योंकि आपने जो पहले जो कंप्यूटर बनाया था वो बड़ा वाला था, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर आया वो थोड़ा छोटा हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी कम होगी। रिड्यूस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन। देन थर्ड, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ज्यादा, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगा दिए, उससे हम एक टाइम पे एक से ज्यादा फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो हमारा जो वर्क होता है वो ज्यादा इजी हो गया, और वो साइज में भी थोड़े और कंपाइल हो गए पहले सेकंड जनरेशन से। यस, यहाँ पर ट्रांजिस्टर एक वर्ड आया। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर तो मैम वो नहीं पता एक्चुअली में। ओके, द नेक्स्ट। फोर्थ जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे आता है। नो, दिस इज अ वन टाइप ऑफ चिप। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर छोटे हो गए और उसमें पब्लिक की डिमांड ज्यादा हो गई, बिकॉज वो इंटीग्रेटेड सर्किट डाल दी और उसमें इंटरनेट ज्यादा ठीक से कनेक्ट होने लगा, तो उसमें वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ कांटेक्ट करना हो तो इजी हो गया, तो उस पे पब्लिक की डिमांड ज्यादा हो गई थी। ओके, अगर यहाँ पे वो ट्रांजिस्टर चिप है वो डाली है, तो उस वक्त उसका कॉस्ट है वो भी ज्यादा होगा। यस और नो? यस। तो हर एक जनरेशन की आप बात कर रहे हो तो उसमें कुछ एडवांटेजेस भी होगा एंड डिसएडवांटेजेस भी होगा। तो आपकी जो स्लाइड है उसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो उसमें एडवांटेजेस को एक दो लिख दो एंड डिसएडवांटेजेस है
वो भी आप रख सकते हो। इन सारी जो स्लाइड है उसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो एक करेक्ट कर देना। ओके, देन नेक्स्ट। Okay. Fifth generation computer is not for a human use. Means at a fifth generation computer नॉर्मल रेगुलर यूज के लिए नहीं है, उसमें सिर्फ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क होता है, मतलब वो कुछ साइंटिस्ट का और इंजीनियर्स और वो सभी वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज करते हैं, क्योंकि ये उसमें एडवांस कंडक्टर टेक्नोलॉजी डाली हुई है, क्योंकि उसमें स्पीड उस कंप्यूटर में स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए। ओके, वो स्पीड है वो तो अपने प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग होती है, डन। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ी हाई लेवल पे है। इसलिए आपका जो कंप्यूटर आप जो खरीदते हो उसमें क्या देखते हो कि जनरेशन देखते हो, राइट। आप जब भी लैपटॉप लेने या कंप्यूटर लेने जाते हो तो वहां पे क्या देखते हो, कॉन्फ़िगरेशन देखते हो ना पहले, प्रोसेसर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें क्या है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उसकी मेमोरी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि ईडी की जो बात कर रहे हैं तो ईडी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है अभी, ईडी आता है या नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है। हाँ, तो उसमें क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, कैड शायद, ऑटोकेड सॉफ्टवेयर शायद आप यूज करते हो, डन। तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाई है। तो हमारा जो पुराना वाला लैपटॉप था उसमें हम वो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि हमारा पीसी वो हैंग हो जाएगा, डन। तो इसके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये है फिफ्थ जनरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम। ओके ओके, कोई स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग तो बोलो, वरुण को बोल दो, वो आप क्वेश्चन करोगे तो वरुण आपका वो आंसर देगा। और सभी स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन है यही फॉर्मेट में होगा, ऐसा नहीं है कि वरुण का जो आज टर्न आया तो सबका ऐसे ही नॉर्मल फ्लो में होगा। आज जैसे ही वरुण का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो सेम सबका होगा। आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट आपने डाले हैं वो पढ़ के आना, डन। देन नेक्स्ट है भार्गव 75। यस मैम। ओके वेट, ओके स्टार्ट भार्गव। Hello, myself Bhargav Viroja. I am presenting to you digital marketing. What is digital marketing? ओके वेट फॉर 1 मिनट। Yes, ma'am. क्यों यहाँ पे प्राइवेसी डाली है, एनेबल एडिटिंग में नहीं कर पा रही हो, पासवर्ड कुछ डाला है या नहीं? नहीं मैम, कुछ नहीं डाला। ओके स्टार्ट। What is digital marketing? In 21st century, the digital marketing is the to sell our product on digital marketing through the digital medium. Okay, which type of digital medium are available in current scenario? Like we share our peak on advertising to on Facebook, Instagram, on Yes. website. Okay, through social media, right? The next. Yes, through social media. Community update. तो फेसबुक में 1 मिनट में 24,60,000 शेयर्स होते हैं, और इंस्टाग्राम में न्यू पोस्ट 2,16,000 होती है, और ट्वीट पर मिनट 2,27,000, और न्यू पिन्स होती है पिंटरेस्ट में वो 3,472 होती है, और यूट्यूब में
वो यूट्यूब वाला मैम वो अच्छे से यहाँ नहीं पे जो डाला है वो। एक जो यूनिट है उसमें अवर्स डाला है और दूसरे जो शहर से उसमें कुछ भी नहीं डाला, तो यूनिट कौन सा होगा? सारे जो नंबर्स यहाँ पे लिखते हो तो यूनिट सबका सेम होना चाहिए, मतलब कि Okay, ma'am. अवर्स है, राइट? तो अवर्स लिखा है तो वो सारे जो सोशल मीडिया है वो सब में अवर्स ही डालो। देन Okay, ma'am. एंड यहाँ पे आप मॉडिफाई भी एक कर सकते हो कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ चार्ट, पाई Yes, चार्ट, ma'am. लाइन चार्ट Yes, एंड ma'am. बार चार्ट। तो आपने यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया है, उसके बदले में आपको यहाँ पे चार्ट डालना हो तो चार्ट भी डाल सकते हो। डन, क्योंकि आप चार्ट देख के इजिली फाइंड कर सकते हो कि किसका शेयर्स ज्यादा है। डन, देन नेक्स्ट Yes, इज ma'am. Key component of digital marketing. We can do marketing from email marketing. We send PPT of our business through email to our customer. PPC marketing with pay per click. We can on social media में ऐड आती है ना जो मैम, वहाँ से यस आप यस यस पे करते हो ना एडवर्टाइज से, उसको बोलते हैं पे पर क्लिक मार्केटिंग। सोशल मीडिया यस। मार्केटिंग में फेसबुक ने वो सब वाला, इंस्टाग्राम, उससे कर सकते हो। ब्लॉगिंग नेक्स्ट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग वो क्या है? ब्लॉग्स का मीनिंग क्या होता है? वो हम सेल्फ पब्लिश करते हैं ना, तो राइट राइट करके वो फोटोग्राफ डाल के वेबसाइट में ना, वो सारा। यस, या तो आप वीडियो बना के यूट्यूब में भी डाल सकते हो, ब्लॉग्स। यस, अभी ट्रेंड वो चल रहा है यस ब्लॉगिंग का। यस, अफिलिएटेड मार्केटिंग। ब्लॉगिंग, affiliate, उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड वो विजिटर्स कैसे आते हैं ना, उस टाइप से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। मींस विजिटर आते हैं उसका मार्केटिंग मतलब? मीन्स एडवर्टाइजिंग मॉडल और कंपनी से थर्ड पार्टी पब्लिशर होते हैं, जनरेट ट्रैफिक लेने के लिए कस्टमर को। ओके ओके, नेक्स्ट। मीन्स के थर्ड पार्टी पब्लिशर। यस, व्हाट इज पुल मार्केटिंग एंड पुश मार्केटिंग? वो कहाँ पे है मैं? नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंटेशन में ही है, मैंने बाहर से कुछ नहीं बोला। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव वो नहीं, हाँ, तो उसके वो बाद स्लाइड डिजिटल थी मार्केटिंग पहले। ऑब्जेक्टिव। हाँ, यस तो उसमें रीचिंग द राइट ऑडियंस, हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। પછી हम ओके, नेक्स्ट कस्टमर को नेक्स्ट मना भी नेक्स्ट। सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फुल मार्केटिंग मीन्स के वेबसाइट और ब्लॉग से हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको हम पुल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं उससे, यस ऑनलाइन बेस पे एड डालकर। और पुश मार्केटिंग में तो ईमेल, हमारे बिजनेस की पूरी पीपीटी वो सब हम कस्टमर को शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। પછી ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पहले पुरानी होती थी, वहाँ पे न्यूज़ से प्रोडक्ट मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइज आती है न्यूज़पेपर में, टीवी में, वो सब एफएम पे। अब सब वेबसाइट और सोशल मीडिया थ्रू होती है मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं उसे। ओके, दोनों में से बेस्ट कौन सी है? टेक्निक यहाँ पे दो है, ट्रेडिशनल डिजिटल, मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई? यस, क्योंकि अब 21st जनरेशन है तो सब मोबाइल में ही, सब सोशल मीडिया पे वो सब मार्केटिंग इजी है। यस। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का नेक्स्ट फ्यूचर क्या है? फ्यूचर। तो यस, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनेट एज मार्केटिंग मीडियम ऑफ वेट द नेगेटिव, मीन्स कि
ट्रेंड थे वो आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग की बढ़ेगी ऐसा विजिट every year digital marketing is going up and customer also ओके ओके डन. comfort without ओके डन डन डन. करेक्शन आपके पीपीटी में ये है कि एक जस्टिफाई अलाइनमेंट. डन देख लो. एंड सारी जो स्लाइड है उसमें बुलेट्स एक ही रखना. कुछ में डॉट रखा है, कुछ में डॉट के आउटर साइड में राउंड है, तो बुलेट सेम रखना, जस्टिफाई अलाइनमेंट करना. dot एंड okay ma'am दो लाइन के बीच में okay लाइन स्पेस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है. एंड फॉन्ट साइज भी डिफरेंट डिफरेंट है. देन वो सब चेक कर लेना एक बार. देख यहाँ पे जो बुलेट्स डाला है उसमें डैश किया है, और यहाँ पे हेडिंग है उसमें वो डॉट और आउटर सर्कल किया है. देन तो एक ही okay बुलेट का yes टाइप yes ले लो. देन एंड okay ma'am फॉन्ट टाइप है वो भी सेम रखो. एंड लाइन स्पेस है वो okay भी ma'am अलग अलग है, वो तो एक बार देख लेना. डन. तो नेक्स्ट है. okay ma'am thank you ओके डन. रोल नंबर 75. ओके रोल नंबर 1 तन्मय इलेक्ट्रिकल. रोल नंबर 1 प्रेजेंटेशन मेल किया तूने तन्मय? હા બસ ઈ જ કરો તમે. પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ થાય ને ત્યારે જ ભણવા બેહો. સોહમ 3 રોલ નંબર 3 આપણે શું છે સ્ટેટસ? ઇલેક્ટ્રિકલ માંથી કોનું થયું છે ઈ મને કયો. ઇલેક્ટ્રિકલ માંથી કોણે પ્રેઝન્ટેશન કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે? નેક્સ્ટ કેમિકલ. રોલ નંબર 3 દિયા. દિયા વેઇટ. ઓકે સ્ટાર્ટ. यस. जितनी भी स्लाइड्स आपने रखी है वो सारी डिस्क्राइब करनी है.
ओके दिया, इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन लिखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मत रखो, क्योंकि वो यहाँ पे देखोगे तो आपका जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो फोकस नहीं होगा कि मोबाइल मार्केटिंग है उसका यूज क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ मोबाइल कॉमर्स डन, तो उसमें से हाईलाइटेड पॉइंट क्या है कि मोबाइल कॉमर्स, तो एक स्टेप्स लगा दो, यहाँ पे बुलेट रख दो एंड मोबाइल कॉमर्स। देन सेकंड पॉइंट है उसमें है एम कॉमर्स, तो सेकंड पॉइंट में एम रख दो। डन, तो जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसका है सिर्फ लिस्ट रखो एंड आप जब भी प्रेजेंट करोगे तभी जो सारा डिस्क्रिप्शन है वो तभी समझा दो। ओके, देन नेक्स्ट। The next. Okay, next. Okay, next. Okay, next. ओके, यहाँ पे एक वर्ड है पुश सर्विसेज, राइट? तो पुश सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है? उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो लोग? पुश सर्विसेज, राइट? उस इसके आगे जो हमने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया उसमें भी एक वर्ड आया था पुल एंड पुश, तो पुश का मीनिंग क्या होता है? नो, एग्जाम्पल देखा था पुश सर्विसेज का? नो, one type of service is not its device. Okay, push services is one type of service like that. tie up word सुना है? tie up, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि कोई हमारी एक कंपनी है तो हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करती है, राइट? दूसरी कंपनी है उसका नेम अलग है, हमारी कंपनी का नेम अलग है, फिर भी जो दूसरी कंपनी है उसके साथ हमने टाई अप किया है तो वो हमारी एडवर्टाइजमेंट करेगी,
राइट, तो उसे क्या बोलते हैं, पुश सर्विस। फॉर एग्जाम्पल हम रियल टाइम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो स्टूडेंट है, देन दोनों स्टूडेंट है, उसके पास प्रेजेंटेशन है, टॉपिक सेम है, प्रेजेंटेशन अलग है लेकिन टॉपिक सेम है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि दोनों में सिमिलर आती है, राइट। तो कोई एक स्टूडेंट है उसका डिस्क्रिप्शन दे देगा तो दूसरा जो स्टूडेंट है उसको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं होगी। पुश सर्विसेज समझ में आया कि आपका जो भी टाइटल है उसका इंट्रोडक्शन दूसरा स्टूडेंट दे देगा। यस और नो, समझ में आया पुश सर्विसेज। टाई अप वर्ड है वो आप दिमाग में रख दो, तो वो क्या हो गया, पुश सर्विसेज। देन नेक्स्ट, ओके डन। Okay, now our attendance. ओके आज जो जिन लोगों का प्रेजेंटेशन हो गया है वो उनका प्रेजेंटेशन सबने देख लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर किसी होगी कि मेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉट एवर, देन आपके पास जो भी रीजन है वो आप ही रिजोल्व करो, क्योंकि हर बार आप ऐसा ही रीजन दोगे तो मैं सबका प्रेजेंटेशन एक साथ नहीं ले पाओगी। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे मेल कर दो 1-2 दिन में, एंड नेक्स्ट मंडे को आपकी एग्जाम है तो उसी दिन लेक्चर नहीं आएगा तो 1-2 एक्स्ट्रा लेक्चर मैं ले लूंगी 12:30 के बाद। डन, तो प्रेजेंटेशन रेडी रखना, और प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो देख लिया, और ऐसा मत सोचना कि इसको आज प्रेजेंटेशन इसका कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आना है। डन, एज अटेंडेंस आप प्रेजेंट हो तो ही मिलेगी। रोल नंबर 1, केमिकल रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सीएफएस की एग्जाम है। 7, नहीं, जो फर्स्ट पेपर था ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था नेटवर्क का, तो वो ही है। 6, 7, 8, રોલ નંબર 7 ભાર્ગવ, તારી પાસે તારો મેલ આઈડી નથી, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેલ આઈડી, પર્સનલ મેલ આઈડી થી હું નેક્સ્ટ ટાઈમ નહીં જોઈન થવા દઉં। 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 and 22. Then electrical. Rule number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Electrical rule number 1. Okay. Five, 6 and 7. Okay, computer boys. Rule number 1, 2. Yes. Rule number 1, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. દેવ તારે મીટિંગ લિફ્ટ કરવી હોય ને તો કરી દે, આટલી બધી છે ને ઉતાવળ છે રોલ નંબર લખવાની. નેટવર્ક ઇસ્યુ છે મેમ. ટર્ન આવે ત્યારે ન બતાવ્યું હોય ને ત્યારે કહેવાનું. જાઓ ઉપડો. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, and 106. 109, 112, 113. Good, now you can leave.